الاضحیٰ ادا کی گئی۔ تمام قواعد کی پابندی کرتے ہوئے فرزندان توحید نے ریاست بھر میں عید منائی ہے۔ سری نگر کے عیدگاہ سری نگر میں واقع تاریخی علی مسجد میں 25 مصلیوں نے عید کی نماز ادا کی ہے۔ جموں کے جامع مسجد استاد محلے میں بھی نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کے لیے جماعت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ مصلیوں نے نماز کی ادائیگی کے دوران سماجی فاصلے کا خاص خیال رکھا۔ ساتھ ہی شہر میں چھوٹے چھوٹے اجتماعات منعقد کیے گئے۔ مصلی چہرے پر ماسک پہنے ہوئے تھے اور ساتھ ہی بغل گیر ہونے پر احتراز کیا گیا تھا۔ کورونا اور بد امنی سے نجات کے لیے دعائیں کی گئیں۔ جناب کیا دن ہے آج کا اور کس طرح کی دعائیں کی اللہ کے آگے آپ نے؟ بس یہی اللہ تعالیٰ ہے جو بیماری پھیل رہی ہے اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور بھی بہت سے دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی دلوں کی جائز تمنائیں پوری کرے، اور بھی بہت سے دعائیں کری ہیں جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت کی، بس یہی سب دعائیں۔ آج قربانی کا دن ہے، سب سے بڑا دن ہے قربانی کا۔ بے شک آج آپ کو کس پرکار سے اس کو منائیں گے، بچے کس پرکار سے مناتے ہیں؟ ہم تو گھر سے باہر ہیں، دیکھیں جو بن رہی ہو ہمارے یہاں خوشیاں ہو رہی ہوں گی، ہم تو باہر ہیں، ہم تو دہرادون سے ہیں، بس یہی ہے جموں میں کام کرتے ہیں اتنا ہی بس۔ ٹھیک شاہد صاحب آ جاؤ جی، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام یاسر ہے۔ یاسر کون سی جگہ یہ کس طرح سے آج یہاں پر عید منائی جا رہی ہے اور کیا دعائیں کی آپ نے اللہ تعالیٰ سے؟ ہم استاد محلے سے ہے، یہ ہماری مین سی پی چوک کی مسجد الحجری ہے۔ یہاں پہ دعائیں یہی کی گئی ہیں کہ ہمارا جو یہ ایک تو کرونا کا ہے، اللہ ہمیں اس سے نجات دلائے، اور ہمارے ملک میں پیس اور شانتی کا پیغام جو ان کے لیے دعائیں کی ہیں، جو بیمار ہیں ان کے لیے دعائیں کی ہیں، یہی چیز چل رہی ہے۔ مین تو اس وقت یہی کرونا کا ہے جو ہمارا سارا یہ چل رہا ہے۔ واضح رہے کہ ریاستی انتظامیہ نے کشمیر ڈویژن میں کووڈ پروٹوکال کی وجہ سے صرف 25 مصلیوں کو عیدگاہوں اور بڑی مساجد میں نماز عید کے اجتماع کی اجازت دی تھی۔ یہ دوسری مرتبہ ہے کہ جبکہ کشمیر میں کووڈ حالات کے باعث عید کے لیے لامحدود اجتماعات کی اجازت نہیں دی گئی ہے، جس کی وجہ سے ریاست کی تمام مساجد میں سناٹا تھا۔ عید الاضحیٰ کے نور سے وادی پھر بھی پر نور نظر آ رہی تھی۔ شہر کی گلیاں اور سڑکیں ویران تھیں۔ قواعد کی پاسداری کرتے ہوئے مصلی مساجد کا رخ کر رہے تھے۔ ادھر کشمیر کے پونچھ میں بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر محلے کی مساجد میں نماز عید ادا کی گئی، لیکن کووڈ قواعد کی مکمل پاسداری بھی وہاں دیکھی گئی۔ اگرچہ کہ پونچھ کے مرکزی عیدگاہ میں نماز عید کی ادائیگی پر پابندی تھی اور یہاں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، تاہم مساجد میں جہاں نماز کی ادائیگی کی گئی ہے ان مساجد میں نماز عید کے بعد امن و امان کی اور کورونا وبا سے نجات کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی تھیں۔ سب سے پہلے میں تمام پونچھ نواسیوں کو، پونچھ کی عوام کو عید کی مبارک پیش کرتا ہوں۔ باقی رہا سلسلہ
عید کی نماز جہاں پہ عیدگاہ پونچھ میں، اسلامی عیدگاہ پونچھ میں، مرکزی عیدگاہ پونچھ میں نماز ادا کی جاتی تھی، تقریباً 50,000 آدمی وہاں نماز پڑھتا تھا۔ پابندی کی وجہ کووڈ-19 کی وجہ سے پابندی کی وجہ جہاں پہ اجتماع نہ ہو وہاں نمازی کی تھی، ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی یہ ہدایت تھی کہ کم تعداد میں لوگوں کی حرکت ہے۔ خاص کر ہمارے مفتی صاحب نے، مفتی فاروق احمد مصباح امام و خطیب نے لوگوں سے اپیل کی تھی کہ اپنے گاؤں میں جہاں بھی کوئی مسجد ہے وہاں نماز پڑھیں۔ یہ عید الاضحیٰ جو ہے یہ بڑی آج اس کورونا کو منظر رکھتے ہوئے بڑی سادگی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ اور آج آپ نے دیکھیں کہ مسجدوں میں تمام جو ہمارے علماء حضرات نے گاؤں میں تو گاؤں کے مسجدوں میں نماز ادا ہوئی، اور یہاں بھی دیکھیے جہاں مسجد میں ادا ہوئی بڑی سادگی کے ساتھ، کورونا اور SOP کا پالن کرتے ہوئے 2 گز کی دوری اور ہاتھ کی دھلائی بھی رکھی انہوں نے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے جتنا بھی SOP کی گائیڈ لائنس ہیں ان کو کرتے ہوئے، سوشل ڈسٹینسز کرتے ہوئے عید منائی گئی ہے۔ تو آج ہم یہ دعا گڑگڑا کے کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کے یہاں پہ یہ جو کرونا وبا ہے یہ ختم فرما، اور یہ تمام بیماریاں جو اس قسم کی ختم فرما، تاکہ دوبارہ یہاں پہ امن آشتی کا ماحول بنے اور لوگ خوشی سے رہ سکیں۔ ادھر گندربل میں نماز عید کے بڑے اجتماعات پر پابندی کے بعد گندربل کی مرکزی جامع مسجد میں بھی نماز عید ادا نہیں کی جا سکی ہے۔ تاہم گندربل کے محلوں کی مساجد میں نماز عید خشوع و خضوع سے ادا کی گئی۔ لوگوں نے ملک کے لیے، ریاست کے لیے، عالم اسلام کے لیے اور کورونا سے نجات کے لیے دعائیں کی۔ واضح ہے کہ کووڈ قواعد کے بعد شہر کی اہم شاہراہیں اور سڑکیں ویران تھی۔ گندربل میں چونکہ مسلسل کبھی ہلکی تو کبھی تیز بارش ہو رہی تھی، اس وجہ شہر کے پارکس بھی ویران رہے۔ لوگ بھی اور بچوں نے بھی بارش کی وجہ سے گھروں پر رہنے کو ترجیح دی ہے۔ جہاں تک نماز عید کا تعلق ہے، نماز عید آج 2-3 سال پہلے جس طرح سے نماز عید عیدگاہوں میں بڑی تعداد کے ساتھ پڑھی جاتی تھی، لیکن 1-2 سال سے ہمارے ملک اور پوری عالم جو کووڈ-19 میں مبتلا ہے، ایک پریشانی میں مبتلا ہے، ایک مصیبت میں مبتلا ہے، تو اس چیز کو دیکھ کر انتظامیہ نے جو پہلے ہی سے کال دی تھی کہ بڑی مساجدوں میں اور میدانوں چراہوں میں کوئی نماز نہیں ہو جائے گی، تو ہم نے بھی پہلے سے لوگوں کو یہ اطلاع دی تھی کہ میدانوں میں یا بڑی مساجدوں میں اس طرح سے کوئی پروگرام انعقاد نہیں ہوگا۔ تو الحمدللہ لوگوں نے اس چیز کا اچھے سے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے۔ تو آج جو عید نماز تھی ہم سب نے عید نماز جو بستیوں کے چھوٹے چھوٹے مساجد ہیں انہی میں پڑھائی ہے۔ جو ہماری جامعہ مسجد ہے یہاں گندربل کی مرکزی مسجد ہے، وہاں پہ کوئی آج نماز عید نہیں ہوئی ہے۔ اگر بات کریں گے عیدگاہ گاندربل کی جو مرکزی عیدگاہ ہے وہاں پہ آج خاموشی دکھائی گئی ہے۔ ہم نے پہلے سے لوگوں کو یہ بتا دیا تھا کہ عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ حکومت نے جو ہمارے لیے فیصلے اٹھائے تھے ان فیصلوں کو ہم نے خیر مقدم کیا ہے، ہم نے ساتھ دیا ہے، کیونکہ یہ ہماری بھلا کے لیے ہے، قوم کی بھلا کے لیے ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عید کی برکت سے، آج عید الاضحیٰ کی برکت سے، اس مصیبت سے، اس غم سے ہمیں نجات دے دے، اور آنے والی جب نئی عید ہوگی انشاءاللہ امید ہے کہ سارا کچھ اچھا سے ہوگا، پھر ایک بار ہم آ جائیں گے عیدگاہوں میں۔ لیکن آج عیدگاہوں میں کوئی نماز نہیں ہوئی ہے، بڑی مساجدوں میں نہیں ہوئی ہے، صرف بستی کے چھوٹی چھوٹی مساجدوں میں کم تعداد میں لوگوں نے نماز ادا کی۔ پلوامہ میں بھی آج عید الاضحیٰ کی جو تقریبات رہی ہیں وہ نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی گئی ہیں اور عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی عید الاضحیٰ۔ مسلمانوں نے عید کی نماز سب سے بڑی جامع مسجد کے ساتھ ساتھ دیگر چھوٹی بڑی مسجدوں میں ادا کی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے پہلے ہی کورونا تحدیدات کے پیش نظر بڑے اجتماعات کے انعقاد پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے عیدگاہ قدیم و جدید میں یعنی پلوامہ کے عیدگاہ قدیم و جدید میں کوئی اس طرح کا دینی اجتماع نہیں ہوا، اور یوں مسلمانوں نے محلے کی مسجدوں میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی ہے۔ اللہ اکبر اللہ سر تھوڑا باہر رہنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
सब वादी के जितने भी जहाँ भी मेरे अजीज़ भाई मुहतरम हैं और सब बुज़ुर्गों को, भाइयों को, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और जैसे कि गवर्नमेंट से एहतियाती तदाबीर का हुक्म है, उसी हिसाब से आज ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई है और सोशल डिस्टेंस के ख्याल रखते हुए इस ईद उल अज़हा की नमाज को अदा किया गया है। और सबको यही हमारी तरफ से ये एक मानो की आम इतला है कि सब इसका ख्याल रखें और खुशियों का इजहार है। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी होती है और ये कुर्बानी अल्लाह की तरफ से दी जाती है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को समझकर। और सब वादी के जितने भी जहाँ भी है और सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। जम्मू कश्मीर में ईद उल अज़हा की क्या थी तैयारियां? नमाज ईद उल अज़हा ही के मौके पर अवाम ने कोविड कवायद की पासदारी की थी। आइए सुनते हैं 4TV के नुमाइंदे शबनम फयाज से तफसीलात। मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम बस उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। जी हाँ, पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की, जो ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो होती है वो ईद नमाज अदा करनी होती है। लेकिन कोविड-19 की कहर अंगेज़ सूरत हाल की वजह से जहां इंतज़ामिया ने हर एक ईदगाह या बड़े बड़े इज्तिमात पर पाबंदी आयद की थी ताकि कोविड का फैलाव ज़्यादा ना हो, उसी सूरत हाल को देखते हुए आज मुसलमानों ने जम्मू कश्मीर में मुकामी मसाजिद में नमाज ईद पूरी SOPs के साथ अदा की। लेकिन जो ईदगाह है वो आज भी मुसलमानों के इंतज़ार में थे कि कहीं से वो आए और ये ईदगाह फिर वही रौनक पेश करे। लेकिन कहर अंगेज़ जो सूरत हाल बनी है कोविड-19 की वजह से, आज भी देखने को मिला कि ईदगाह खाली पड़े हैं। यहाँ पे जहाँ कुर्बानी के जानवर मौजूद थे और जो जहाँ जहाँ कुर्बानी दी जा रही है वहीं पर दुआएं मस्जिद में नमाज ईद पर ये की गई और कुर्बानी देते हुए ये की गई है, अल्लाह हमारे लिए अब ईदगाहों के दरवाजे खोल दे और हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। और उम्मीद हम यही रखेंगे कि अल्लाह बड़ा है और शायद आने वाले दिनों में हमारे लिए ईदगाहों, मस्जिदों, दरगाहों, खानकाहों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। शबनम फयाज, 4TV न्यूज़। उधर राजौरी की मरकजी जामा मस्जिद और दीगर मस्जिदों में नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई। लेकिन इन छोटे मजहबी इज्तिमात में भी एहतियात की तदाबीर पर क्या पूरा ख्याल रखा गया था, उस पर अमल किया गया था। इन मसाजिद में ईद का खुतबा भी दिया गया, तकरीर भी की गई थी, नमाज के बाद रिक़्क़त अंगेज़ दुआएं की गई। ताहम राजौरी की ईदगाह में भी नमाज ईद का अहतमाम नहीं किया गया था। इस मौके पर अवाम ने एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश की है। अज़हा है, आलमी इस्लाम ईद उल अज़हा मना रहा है, जो कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी लगी थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अपने फ़र्जंद अर्जमंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी थी, उसकी याद में आज आलम इस्लाम जो है वो जानवरों की कुर्बानियाँ पेश करता है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हमें आज राजौरी में भी बड़े तज़्को एहतशाम से ईद उल अज़हा का त्यौहार जो है वो मनाया जा रहा है। राजौरी के रहने वाले लोगों को बिलखसूस और पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को बिलअमूम ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि ये ईद सब के लिए खुशियाँ लेकर आए और समाज में अमन, चैन, भाईचारा कायम रहे। और हमारी तंजीम जो इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से भी हम तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। शुक्रिया।
जम्मू कश्मीर के साथ साथ आज ज़िले रामबन में भी ईद उल अज़हा का त्यौहार जोश व खरोश और मजहबी जज्बे के साथ मनाया गया। ज़िले रामबन में ईद की सबसे बड़ी जो तकरीब रही है वो बानिहाल की ईदगाह में मुनक़िद थी, लेकिन इंतज़ामिया की हिदायत के बाद ईद उल अज़हा की नमाज मकामी मसाजिद में अदा की गई। आपको बताएं कि इससे पहले जो ज़िला रामबन में ईद की सबसे बड़ी तकरीब बानिहाल की ईदगाह में मुनक़िद हुआ करती थी, इंतज़ामिया की हिदायत के बाद वो नहीं हुई है। ईद उल अज़हा की नमाज लोगों ने मकामी मसाजिद में अदा की है। ईद के मौके पर ज़िले रामबन के सियासी लीडरों के अलावा समाजी कारकुनान ने अहले इस्लाम को ईद की मुबारकबाद पेश की और दुआ की कि अल्लाह ताला ये ईद जम्मू कश्मीर के अवाम के खुशी का बाज़ बना दे। को कुर्बान कर दो। ईद उल अज़हा के मौके पर मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा को और जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को ईद के मौके पर, इस ईद उल अज़हा के मौके पर अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं। और ये ईद हम सब के लिए खुशियों की ज़ामिन साबित हो, अमन अमान की ज़ामिन साबित हो और भाईचारे की ज़मानत साबित हो। मैं इस मौके पर सब लोगों से यही इल्तिजा करूंगा कि सब लोग आपस में, जो भी आज तक अगर आपस में किसी भाई को दूसरे भाई के साथ कोई रंजिश हो तो वो आज के दिन हमें ये ईद ये पैगाम देती है कि हमें उसको दूर करना चाहिए। यही ईद का पैगाम है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं वो उसमें जो भी दीन इस्लाम ने हमें सिखाया है, जो भी हमारे ऊपर जो अहकामात है कि कुर्बानी का तरीका क्या है, उस तरीके को अपनाकर खासकर अपने उन गरीब भाइयों का खासकर ख्याल रखें जो उनके हमसाए हैं। पहले उनका ख्याल रखा जाए और उसके बाद जो रिश्तेदार हैं उनका खास ख्याल रखा जाए। ये ईद हमें यही पैगाम देती है कि हमें अपने हमसायों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने उन गरीब भाइयों का ख्याल रखना होगा कि उनके घर में जिस तरह हम अपने घर में ईद मनाने की तैयारियां करते हैं, क्या मेरे हमसाये के घर में भी इस किस्म की तैयारियां हैं? अगर उसको किसी भी चीज़ की कोई परेशानी है उसमें हाथ बटाना है। यही ईद का पैगाम है। ईद उल अज़हा के मौके पर अवाम, कायदीन और समाजी कारकुनान की जानिब से ईद उल अज़हा की मुबारकबादियाँ दी जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर ने भी अवाम को ईद की मुबारकबाद दी है। उन्होंने ईद के मौके पर अवाम को मज़ीद जिम्मेदारियों को उठाने और सब्र करने की तलक़ीन भी की। ईद उल अज़हा के इस मुबारक मौके पे जहाँ हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेमिसाल कुर्बानी को याद कर रहे हैं, आग है, औलाद इब्राहीम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इंतहा मकसूद है। ये अजीम कुर्बानी एक तरफ हम ये याद कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास भी दिला रही है। आज के इस पुराशूब दौर में, आज के इन हालात में, जबकि हम खुद देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी, हमारी कौम किन मुश्किलात से दो चार है, किन हालात से दो चार है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारी ज़िम्मेदारी इस वक्त और बढ़ चुकी हैं। इस दौर पुराशूब में ईद तो न आती है तो अंदाज़ इब्राहीम से खाजा। ज़रूरत इस बात की है कि हम में वो कुर्बानी का जज्बा, कुर्बानी का एहसास ज़िंदा हो। ये महज भेड़ बकरी या दूसरे जानवरों की कुर्बानी का मामला ही नहीं है, बल्कि ये हमारे दिलों में एक एहसास ज़िंदा होने की अलामत साबित होनी चाहिए। बल्कि हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि इस मौके पे वो अपने अंदर ये जज्बा पैदा करे कि मेरी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। इन हालात में जबकि हमारे स्कूलों के मुंतज़िमीन मुश्किलात से दो चार हैं, स्कूलों का स्टाफ मुश्किलात से दो चार है, मेड्स, ड्राइवर्स जो कहीं कहीं महीनों से तनख्वाहों से महरूम हैं, जिनके घरों में आज बेहद मुश्किलात, बेपनाह इस वक्त मसाइब हैं। अक्सर मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि वो किन मुश्किलात से इस वक्त दो चार हैं। हमारी बस सोसाइटी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम मुस्तहक़ीन का भी
ख्याल रखें, हम इस ईद को सादगी से मनाएं। देखें कि सोसाइटी में जो मजबूर हैं, जो लाचार हैं, जो मुस्तहक हैं, जिनके घर में चूल्हा भी अच्छी तरह नहीं जल पा रहा है, आज हम इस ईद को सादगी से मनाते हुए उन लोगों के पास जाएं, उन लोगों के मुश्किलात में जो हमसे हो सके हम उनकी मदद करें, उनके मुश्किलात को कम करने में हम अपना हिस्सा अदा करें। ईद उल अज़हा के मौके पर हिंदू पाक के बीच फ़रोग़ अमन के तहत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फ़ौजी ओहदेदारों के बीच हज़्ब रिवायत फ्लैग मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कमान अमन सेतु और उड़ी थेटवाल क्रॉसिंग के पास मिठाइयों का तबादला अमल में लाया गया। साथ ही दोनों फ़ौज के ओहदेदारों ने मुस्तक़बिल में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सख्ती के साथ जंगबंदी पर अमल आवारी पर भी इत्तेफाक किया है। ज़िले कुपवाड़ा के सरहदी इलाके में भी दोनों मुल्कों के फौजियों ने आपस में यानी मिठाइयों का तबादला किया है। सरहदी ज़िले कुपवाड़ा के इस इलाके में फौजियों ने ज़ीरो लाइन इलाके में हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी फौजियों ने बाहमी ईद मिलन का मुजाहरा किया और आपस में दोनों तरफ के फौजियों ने मिठाइयाँ तकसीम की हैं। दोनों सरहदी इलाकों के अफराद ने इस मंजर को बचश्मे खुशी मुशाहदा किया। इस मौके पर फ़ौज के आला अफसरान, जम्मू कश्मीर पुलिस के SHO टिटवाल अब्दुल रहमान के अलावा लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। फायर के बाद पहली रमज़ान की ईद थी, तब भी मिठाई एक्सचेंज हुई, आज भी एक्सचेंज हुई। अच्छा शुक्र हम मानते हैं, इससे मोहब्बत बढ़ेगी। और ईद से ज़्यादा हमें सीज़ फायर की खुशी है, क्योंकि पहले गन गरज में हम रहते थे, उस चीज़ से अब हम बाहर आ चुके हैं। बड़ी खुशी का दिन है हमारे लिए। दोनों मुल्कों के दरमियान अभी मिठाई एक्सचेंज होने जा रही है, तो ये एक अच्छा शुक्र है, हम इसको वेलकम करते हुए। और साथ ही हम दिल्ली और इस्लामाबाद को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये चीज़ जो है मिठाई तक ही महदूद नहीं रहनी चाहिए। ये दोनों मुल्कों का प्यार हमेशा के लिए कायम रहना चाहिए। हमारे ये जो इसी ईद के साथ साथ मिठाई एक्सचेंज के साथ साथ हमारे जो क्रॉसिंग पॉइंट बंद पड़े हैं, जैसे कमान है, टीटवाल है, चिकंदाबाद है, 5 क्रॉसिंग पॉइंट है, तो ये भी खुलने चाहिए। लोगों का आना जाना रहना चाहिए। मिठाई के साथ साथ जब लोगों का आना जाना होगा और प्यार बढ़ेगा और मोहब्बत बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रायना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जम्मू के हेडक्वार्टर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और आइए सुनते हैं उन्होंने क्या क्या और किन ख्यालात का इजहार किया, क्या बात की। पिछले 70 वर्षों में जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35A की आड़ में जम्मू कश्मीर की बेटियों के साथ बहुत अत्याचार किए गए। पिछले 70 वर्षों में जम्मू कश्मीर की बेटियों से उनके हक छीने गए। जब भी जम्मू कश्मीर से यहां की किसी बेटी का विवाह, उसकी शादी जम्मू कश्मीर से बाहर होती थी, उसके सारे जम्मू कश्मीर में संवैधानिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते थे। जम्मू कश्मीर की अगर कोई बेटी यहां से उसकी शादी बाहर के किसी अन्य राज्य में होती थी, उसके जम्मू कश्मीर में सारे अधिकार समाप्त कर दिए जाते थे। और यहां तक कि पाकिस्तान से, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अगर किसी लड़की की शादी जम्मू कश्मीर में की जाती थी, उसको सारे अधिकार दिए जाते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर की बेटियों के अधिकार समाप्त कर दिए जाते थे। अब चाहे उनकी शादी जम्मू कश्मीर से बाहर होगी, उनके बच्चों को, उनके पति को भी जम्मू कश्मीर के अंदर वो पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे जो भारतीय संविधान के अंदर दिए जाते हैं। मार्च 2004 में
जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल लाया जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस डिस्क्वालिफिकेशन बिल 2004। इस बिल में जो 2002 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की महिलाओं को अधिकार दिए थे, उसके खिलाफ कानून बनाने की कोशिश कांग्रेस और एनसी ने की, और वो क्यूरिटी पिटीशन जो पहले से ही दायर की थी एनसी ने जम्मू कश्मीर की बेटियों के खिलाफ, उससे भी बड़ा अपराध कांग्रेस और पीडीपी की 2004 की उस सरकार ने किया। और आज जब धारा 370 समाप्त कर दी गई है, आज जब 35A को समाप्त कर दिया गया है, आज नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर की बेटियों, जम्मू कश्मीर की महिलाओं के साथ इंसाफ किया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा के मौके पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी है। कोविंद ने ट्वीट किया और कहा कि मुल्क के तमाम बाशिंदों को ईद मुबारक। ईद उल अजहा मोहब्बत, खुद सुपुर्दगी और कुर्बानी के जज्बे के तई एहतराम ज़ाहिर करने और एक जामे माशरे में इत्तेहाद और भाईचारा के लिए मिलकर काम करने का त्यौहार है। उन्होंने कहा कि आइए हम कोविड से बचाव के इक़दामात को अपनाते हुए माशरे के हर तबके की फलाह बहबूद के लिए काम करने का अहद करें। दूसरी तरफ कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और ने भी मुल्क के अवाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि आप सभी को ईद उल अजहा मुबारक हो, हर एक मुल्क के शहरी को ईद मुबारक। प्रियंका गांधी ने कहा है कि आप सभी को ईद उल अजहा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में ईद उल अजहा खुशू व खुजू के साथ मनाई जा रही है। बाज़ रियासतों में कोविड कवायद के मुताबिक महदूद मुसल्लियों के साथ ईद मनाई गई है और लखनऊ ईदगाह में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने नमाज ईद की इमामत की। आपने देखा कि आज ईद उल अजहा के मौके पर ईदगाह लखनऊ में जहां हर साल लाखों लोग नमाज़ पढ़ते थे, आज हुकूमत की गाइडलाइन पर अमल करते हुए सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों ने नमाज अदा की है और नमाज के बाद अपने मुल्क और पूरी दुनिया से इस बीमारी के ख़ात्मे के लिए दुआ की है। और आज नमाज के खुतबे में सबसे ये अपील की गई कि सब लोग अपना अपना वैक्सीनेशन ज़रूर करा लें और जो प्रोटोकॉल है कोविड का उसको सब लोग फॉलो करें। और आज बकरीद के मौके पर आप लोग देख भी रहे होंगे कि चाहे नमाज हो या कुर्बानी हो, सब लोग जो भी हिदायत दी गई हैं, जो एडवाइजरी जारी की गई है, उस पर सब लोग पूरी तरीके से अमल कर रहे हैं। गोवा के दारुल हुकूमत पानाजी में भी नमाज ईद के मौके पर कसीर इज्तिमा देखा गया है। मसाजिद में कवायद की पाबंदियां आयद थीं। तमिलनाडु के मुख्तलिफ अजला से भी ईद उल अजहा के इज्तिमात की इत्तलात मिल रही हैं। मुसलमानों ने मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद अदा की है। जम्मू में भी ईद उल अजहा मनाई गई है। श्रीनगर में भी महदूद मुसल्लियों के साथ मसाजिद में ईद की नमाज अदा की गई। सिक्योरिटी का भी वसी तर बंदोबस्त यहां देखा गया था। दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद में भी कोविड कवायद के मुताबिक नमाज ईद उल अजहा अदा की गई है। नमाज ईद के लिए महदूद मुसल्लियों को ही इजाज़त दी गई थी।
اور انہوں نے یعنی محدود لوگوں کو ہی عید کی ادائیگی کے لیے موقع دیا گیا. انہوں نے بتایا کہ صرف 15 سے 20 افراد کو ہی جامع مسجد میں نماز کا موقع دیا گیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم سب نے جو ہے نا سوشل ڈسٹینسنگ اور کووڈ کے جو ہے نا پروٹوکول جو ہے اس کو ہم نے پورا فالو کیا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا یہاں پہ گورنمنٹ اور پرشاسن ان سب نے ہمارا ساتھ دیا ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ جو ہے نا ہم لوگوں نے سب نے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کیا ہے اور کووڈ کے پروٹوکول کو پورا جو اس کو فالو کیا ہے. ہماری ٹیمز جو ہیں علاقے میں گھوم رہی ہیں اور اناؤنسمنٹس کر رہے ہیں, لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. اور یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ یہاں لوگوں کا کافی کوآپریشن ہمیں ملا ہے. عموماً یہاں پہ بہت بھیڑ بھاڑ رہتی ہے بٹ کافی لوگ کوآپریٹ کر رہے ہیں. امام صاحب کے دوارا بھی اناؤنسمنٹ کیا گیا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہ کے جو ہے نماز ادا کریں, تو ان سب چیزوں کا بھی لوگ فالو کر رہے ہیں. آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت کا کہنا ہے کہ سیکولرزم, سوشلزم اور جمہوریت ہندوستان کی روایت ہے اور ہمیں یہ کسی دوسرے ملک سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے موہن بھاگوت کا یہ کہنا تھا کہ آج سیکولرزم, سوشلزم اور جمہوریت کو ہندوستان نے زندہ رکھا ہے. سیکولرزم, سوشلزم اور جمہوریت ہندوستان کی روایت ہے اور ہمیں یہ دنیا سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ وائرس سے ریکارڈ 3,998 افراد کی موت ہو گئی اور بتایا جا رہا ہے کہ 42,015 نئے کیسز سامنے آئے. اس دوران منگل کے روز 34,25,446 افراد کو کورونا کے ٹیکے لگائے گئے. ملک میں اب تک 41,52,72,455 افراد کو ٹیکے لگائے جا چکے ہیں. مرکزی وزارت برائے صحت کی جانب سے بدھ کی صبح جاری اعداد شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 42,015 نئے کیسز سامنے آنے کے ساتھ ہی متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر 3,12,16,337 ہو گئی ہے. اس دوران 36,977 مریضوں کے صحت یاب ہونے سے اس وبا کو شکست دینے والوں کی مجموعی تعداد 3,03,90,687 ہو گئی. ایکٹیو کیسز 1,040 سے کم ہو گئے ہیں, یعنی 1,040 ایکٹیو کیسز میں کمی ہوئی ہے. 4,07,170 رہ گئی ہے اور اس دوران 3,998 مریضوں کی موت ہونے سے مرنے والوں کی تعداد بھی 4,18,480 تک پہنچ گئی ہے. ملک میں ایکٹیو کیسز کی شرح کم ہو کر 1.30%, شفا یابی کی شرح بڑھ کر 97.36% اور شرح اموات کی 1.34% ہو گئی ہے. آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک مرتبہ پھر نظر ڈالیں گے. جموں کشمیر میں مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے عید الاضحیٰ. عیدگاہوں اور بڑی مساجد میں اجتماعات سے احترام. وادی میں محلے کے چھوٹی مساجد میں کووڈ پروٹوکول کے تحت نماز عید کے محدود اجتماعات. پابندیوں کے بعد شہر کی سڑکیں سنسان. عید الاضحیٰ کے موقع پر ہند و پاک کے فوجی عہدیداروں کے بیچ حسب روایت فلیگ میٹنگ کا انعقاد. مٹھائیوں کا تبادلہ. جنگ بندی پر عمل آوری پر کیا اتفاق. کشمیر بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی. اعظم علی خان یوسف زئی کو دیں اجازت. خدا حافظ.